and sisters, wishing you all a wonderful, happy evening and green morning, green afternoon, green evening, wherever you are world over, because all of us we are connected. The world is moving to the better days now. We hope so. Belated Happy New Year to the people those are joining us today for the first time. We extend a very warm welcome to Sri Anil Manoji, the Executive Director, Ion Exchange Asia Pacific Private Limited, based out of Singapore. And at the same time, he's our senior advisor also. There is so much to learn and so much to know from him with regard to water management strategies. Now, ladies and gentlemen, today we have taken community-based solutions to remove groundwater contamination for better health. और जल संरक्षण हमारा बीड़ा है और मेकिंग एजुकेशन रेलिवेंट में उसको लेकर चलते हैं। आज भारत के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। टुडे इज इंडियन आर्मी डे एंड आई कम फ्रॉम द आर्म्ड फोर्सेस, तो आज मुझे ये लगता है ये मेरा दिन है, क्योंकि इट्स अ हैप्पी इंडियन आर्मी डे 2021 15 जनवरी को। हमारे चेंबर की तरफ से वी एक्सटेंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। The whole world is one family, and that's why it is called Vasudhaiv Kutumbakam, all of us together. So, ladies and gentlemen, holistic education, that is the agenda we are taking in future, and that is the way we are proceeding, we are working, we are moving ahead, and we are taking the whole philosophy. The water crisis is a great concern, and we got to save every drop of the water. That is something very important. And what does water do for us? There is something again very important, and what percentage world over is a water, and what kind of a water are we utilizing, and how basically the global scenario of the water is, water conservation, how it is important, and what exactly school, colleges, universities, children, and what can we do at our residence, for that matter, our mother, our daughter, our wife, our grandchildren, and everybody, whosoever is there, we all got to be taken care of. Now, our chamber during this pandemic, we have been going global 12 hours every day. This is the complete fulcrum. Now we have reached 30 webinars. Since morning we were having webinars. I just finished about 30 minutes back, 20 minutes back, and now it's 5 p.m. and we are going ahead. After this, we have got one more program which is lined up. And of course, today, a lot of friends of ours in America, in South America and Canada, they are celebrating today also our Punjabi Parvasi Divas. Since morning today, we had this program, and that was basically 6th Edu Leader Summit, Empowering Education Ecosystem. We had 67 principals together on a common platform, all of us. And thereafter, 3 p.m., we integrated this program also in our webinar. And immediately after this program, we have got Sola Sanskar series, and that is Professor Prabhu Narayan Mishra ji, head of the School of Economics from Devi Ahilya Vishwavidyalaya. गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि तक जब सब संसार में आते हैं और जब जाते हैं, बीच का पूरा कार्यक्रम विस्तार से इन्होंने कवर किया, बहुत अच्छे से कवर किया। और आज इसको वो समअप कर रहे हैं कि हमारे जो 16 संस्कार जीवन के हैं वो कौन से होते हैं, क्या है। ये भारतीय समय अनुसार शाम को 7 बजे आज हमारे साथ जुड़ेंगे, हमारे प्रोग्राम में होंगे। हमारा चेंबर ये रिकमेंड करता है बेसिक फूड, बेसिक हेल्थ, बेसिक एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। Ladies and gentlemen, जो कुछ भी हमारा मस्तिष्क सोचता है, हमारा दिमाग सोचता है, whatsoever human mind can conceive and believe, it can achieve. All of us, we should come together. And here comes Anil Manoji. He is based out of Singapore. He is an experienced professional in water and waste management. अब ये दोनों बड़े important है, waste management भी बड़ा important है। मैं इनसे किस दिन निवेदन करूंगा कि we should cover that area as well separately. He is an executive director with the Ion Exchange Asia Pacific Singapore. He has about 35 years of professional experience working in India, ASEAN, Middle East, Africa, and other parts of the world. He actively collaborates with the stakeholder, technology partner, governments, financial institutions in offering practical solutions for water treatment. सबसे important है practical solutions, water conservation, wastewater treatment, zero liquid discharge. And Shri Anil ji, he holds his degree in mechanical engineering and is associated with the various chambers, Singapore Water Association, India Business Forum, Trade Organization,
and he is a senior most person in our water management strategies from our chamber. और ये जो ब्लैंक स्लाइड है ये मैं हूँ, क्योंकि यहाँ से मैं शुरुआत कर रहा हूँ अपनी और कुछ सीखना चाहता हूँ आज की शाम. So hearty welcome to Shri Anil Manoji ji, and with these words we move on. गुड डे एवरीबॉडी, नमस्कार. आप सुरक्षित रहें और यही हमसे उम्मीद है, आपसे उम्मीद है कि आप सेफ रहेंगे जहाँ पे भी होंगे. हम लोग बात करते हैं वाटर से रिलेटेड इश्यूज की. सो टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट groundwater contaminations. And if you see on the screen, we will be talking about community-based solutions. See, what happens is whenever we look at water-related issues, we always come with a very big problems, and we always say that these problems are going to take a lot of time, lot of money, and lot of energy is required. But we also have to realize one thing, that there is a possibility of giving a good quality of water to communities by simple solutions. So what we are going to do today is we will talk about groundwater contamination. And in the backdrop of groundwater contamination, we have understood in the previous webinars about situation of water quality in various parts of the world. And when I focus to India, we have the issues in Punjab. In Punjab, we have talked about the issues of arsenic, heavy metals, the impurities in water, and how it is affecting the health of people, how the people are suffering because of the contamination. So we will talk about that. We also know that in northeastern part of India, also there is a problem of arsenic. We also know that there is a pollution because we are taking a lot of water from the ground. We are disturbing the underground strata, and a lot of water gets contaminated by the rocks and other things. So we will talk about all these issues today, and today we will stay focused on groundwater contamination. Now, when we look at water, and if you go through the water, you will see a picture on the top which talks about the suspended impurities like पानी के अंदर clay होती है, मिट्टी होती है, organic suspension होती है. See, for the common person, you feel that this water is dirty. This water cannot be used. And sometimes when we get a clean water, which the water this girl is holding, this water can have so many dissolved impurities. And for the audiences, they should know that these impurities at the bottom, which looks clean, are much more harmful than the impurities which you can see with your eyes. So these impurities create lot more damage to your health. Now, before we get into the subject, let us understand few terms. Let us talk about what is potable drinking water. Now, drinking water is a water which should appear clean to our naked eyes, which should be free from unpleasant odor, taste, and color. So the water which practically looks clean and it is free from toxins, carcinogenic, pathological bacteria, and other things is called a drinkable water. And also we somehow use the term safe water. Safe water for all domestic applications may be slightly poor in quality as compared to drinking water, but we can still use it. It may not be necessarily pure, but it may have some impurities like salts, like magnesium, calcium carbonates, bicarbonate, etc. But this water also can be used. So we in this slide we are talking about two type of waters: drinking water and safe water. Drinking water definitely is better, which is potable, which you can drink, and safe water is also which you can use. Now, in safe water, then we got certain standards. WHO has some standards which define the drinking water standards. And in layman terms, we say that a water which does not create any health hazards is called safe drinking water. And when we say uh, uh, safe drinking water, we say it should be from an improved water resource, which could be a household connection, public
standpipes, bore wells, dug wells, protected springs, rainwater collections. So any source where you collect water and which is meeting the potable water standards is called safe drinking water. And access to drinking water, if you have to really see in the areas where the water is not available, we always say that at least 20 liter of water per person should be available, so within a 1 kilometer distance, so that people have access to safe drinking water. Now let us now talk about how the water becomes unsafe. Now, when water becomes unsafe because of various issues, water can have inorganic contamination like metals, fluoride, arsenic, lead, copper, chromium, mercury, antimony, cyanide. This type of contamination get into the water from natural resources, industries, and other pipelines. Now, this type of problems are very common nowadays, and if you look at Punjab, Punjab is one of the states which is having this inorganic contamination. Now, we also have another type of contamination which is called organic contamination. This organic contamination comes by excessive use of fertilizers, excessive use of pesticides, and this contamination comes from rivers, lakes, ponds, etc. And then we have biological contamination. Biological contamination is a water which may look clean, but it may have bacteriological contamination like algae, bacteria, viruses, protozoas. And this also creates a health problem. And then fourth type of problem we call is radiological contamination, which comes from the underground condition of the soil. Now, this could be uranium, this could be any other radiological elements which are present in water can create this problem. So whenever we talk about water, we can classify water into four such heads in terms of contamination. And whenever one of these or blend of these is present, water becomes unsafe for drinking. Now, now let us talk about the community water groundwater systems. Now, when we look at groundwater systems, we come across various type of systems like fluoride removal systems, heavy metal removal systems, nitrate removal systems, iron, manganese, arsenic, and then we also have something to do with organics and something for disinfection. Now, these are a standard which is prescribed by W Health Organization and United States US EPA. US EPA is United States Environmental Protection Agency. Now, and also we have Indian standards. So Indian standards and WHO standards are more or less similar, and we define the maximum permissible contamination level of various chemicals. So for the purpose of ease, I have just picked a few contamination here, but when you will try to analyze water, there will be more than 200 odd contaminations which will be defined in various standards. So, and how do we measure these standards? When we look at practical approach, you have certain type of kits which you can take in the field. So whatever, why we show this picture is that when we see that water is contaminated and it is going to take time when we send the water to analysis, and it takes number of days and so many weeks. It may sometimes, the water analysis may take a lot of time, and we at the front line cannot wait for water to be declared as safe or unsafe. So we have certain immediate kits which can be used to analyze various parameters. Now we are also should be aware that all the parameters cannot be analyzed, but the broader parameters can be analyzed and which can define whether this water is safe or unsafe. And certain parameters like arsenic, which I cannot analyze here. Arsenic is a contamination which is related to the strata of the belt of the soil from where we are extracting the water. And instead of talking to so many issues, what we thought, if we devote time and speak on all these issues, probably we'll need 3-4 hours. So we are dividing our presentation into various sections. And today section we will talk about treatment of water contamination, water contaminated with fluoride, heavy metals, iron, nitrate, and arsenic. And what
are the technologies and how this can be used for communities, and whether these are simple, complex, complicated. We'll try to understand all this. We'll also talk about what type of options are available for people, for homes, and what should be the community level approach. What you can see in the picture here is that you can even install a small device on a hand pump and you can get a clean water. You can install a small device at home and you can get a clean water. So it is not necessary that you have to go for complicated, robust, expensive system to meet the water challenges. And you can still have a small complex systems, easy systems for meeting your water requirements. We will now go by few contaminations. Like, one of the contamination we generally discuss is fluoride level in the water. Now there is certain permissible limit of fluoride which water can take. Now permissible limits are 0 to 2.5 ppm. ppm is a term which is used in water sector, which is called parts per million. On the 2.5 ppm means 2.5 parts 1 million of total contamination. Now, we should be aware that this fluoride is excessive use of fluorides can cause gastrointestinal problems, allergies, anemia, and urinary tract problems. And fluoride impacts our body skeleton. Uh, Initially, the initial stages of fluorides will be आपके दांत पीले हो जाएंगे, टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे. जब ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो आपको लगता है कि हाँ फ्लोराइड इफेक्ट कर रहा है. और जब ये सिचुएशन ज्यादा ग्रे हो जाती है तो आप ये देखते हैं कि आपके जो बॉडी है वो इस तरीके की हो जाती है. नाउ दिस ऑल इश्यूज में ब्रिंग टू स्केलेटन. आपका बॉडी का स्ट्रक्चर डिफॉर्म हो सकता है, आप बॉडी क्रिपल हो सकती है, आपके दांतों में प्रॉब्लम आ सकती है और आपके डेंटल इश्यूज आ सकते हैं. सो ये एक कंटेमिनेशन जो फ्लोराइड है ये हमको इस तरीके से इफेक्ट करती है इन आवर डे टू डे ऑपरेशन लिविंग. नाउ हाउ डू वी रिमूव फ्लोराइड? फ्लोराइड को रिमूव करने के 3-4 तरीके होते हैं. एक तरीका होता है कि फ्लोराइड को हम किसी तरीके से निकाल दें पानी में से, उसको प्रेसिपिटेट कर दें, कुछ ऐसे केमिकल डालें जिससे कि फ्लोराइड पानी में से निकल जाए, फिर उस हम पानी को छान लें और वो छना हुआ पानी जो है वो साफ हो जाएगा. एक ये तरीका है. दूसरा तरीका ये है कि हम इसको एक रिवर्स ऑस्मोसिस की एक टेक्निक है जो काफी पॉपुलर है आजकल इंडिया में, उसके थ्रू ले लें. और तीसरा एक टेक्निक ऐसी है कि हमको एक सस्ता सिस्टम भी चाहिए, हमको टिकाऊ सिस्टम भी चाहिए और हमारे पानी को आरओ प्लांट की जरूरत नहीं है बिकॉज हमारे पानी में सिर्फ फ्लोराइड कंटेमिनेशन है. तो उसके लिए हम फ्लोराइड स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं जो कि एक रेजिन बेस्ड टेक्नोलॉजी होती है जो कि फ्लोराइड को पानी में से निकाल देती है. और पानी में से निकालने के बाद में, और यदि पानी में कुछ और भी केमिकल्स हैं, क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स हैं, उसके बाद भी मुझे ठीक करती है और फ्लोराइड को एक WHO स्टैंडर्ड से ट्रीट करके आपको सेफ्टी दे देती है फ्लोराइड रिलेटेड इशू से. ये जो फ्लोराइड रिलेटेड इशू होती हैं ये इस टाइप के छोटे छोटे दाने होते हैं केमिकल के, जो कि हम एक टैंकी में डाल देते हैं. और ये पर्टिकुलर जो टेक्नोलॉजी है, ये जो हमारे रेजिन, इनको हम आयनिक्शन रेजिन्स बोलते हैं, ये 2 से 3 साल की लाइफ होती है और पॉइंट ऑफ यूज एप्लीकेशन के लिए एकदम परफेक्ट है. और मोस्ट ऑफ दिस प्रोसेसेस आर सर्टिफाइड बाय एक्रेडिटेड लेबोरेटरी. इनके हमारे फूड ड्रग रिसर्च एसोसिएशन की अप्रूवल होती है और इनके एक्सीलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जिससे कि ये लोग परफॉर्म कर सकें. यदि आप सिस्टम को देखें तो ये एक छोटा सा सिस्टम है जो हम कम्युनिटी में लगा सकते हैं जो कि हमारे 150 से 200 लोगों को फ्लोराइड फ्री पानी दे देगा. इस सिस्टम को हम सीधा हैंड पंप पे लगा देंगे और हैंड पंप से सीधा लोगों को पानी मिल सकता है. हम चाहें तो इस पानी को हम यहाँ इकट्ठा कर सकते हैं और लोग यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं. तो यदि आप देखने में जाएं तो इतना छोटा सा एक सिस्टम हम हैंड पंप पे अटैच कर दें और अच्छे पानी को लोगों को दे दें, तो इससे अच्छा तो मेरे को लगता नहीं कोई ऑप्शन होगा. और इतना छोटा सा प्लांट आप देखेंगे तो ये 150 से 200 लोगों को पानी पिला देता है. और यदि हम इसको देखें कैसे होता है, इसको बिजली नहीं चाहिए, इसको चलाने के लिए बहुत ऑपरेशन, कोई भी हम नॉर्मल लोगों को ट्रेन कर सकते हैं
और जनरली हम यही बोलेंगे, यदि हम कम्युनिटी वाटर सिस्टम्स की बात करें, तो जो हमारी बहनें हैं वो, उनको आगे आना चाहिए ऐसे प्लांट्स को ऑपरेट करने के लिए। जो हमारी वुमेन फ्लॉक है वो ज्यादा अच्छे तरीके से पानी को मेंटेन कर सकती है, कीप कर सकती है। उनको मालूम है कि पानी की इंपॉर्टेंस उनके लिए क्या है, उनके परिवार के लिए क्या है। तो जितने भी यदि कम्युनिटी वाटर बेस्ड सिस्टम्स को हमको सक्सेसफुल करना है, तो हमको अपनी बहनों को ट्रेन करना है, अपने माओ को ट्रेन करना है, अपने बच्चों को ट्रेन करना है, जो कि इसको चला सके। यदि हम ये आदमियों के ऊपर डिपेंड करेंगे तो वो नहीं होगा, बिकॉज आदमियों को खेतों में काम करना होता है और वो खेतों में उनकी प्रायोरिटी ज्यादा है। और इस सिस्टम को चलाने के लिए हमें एक केमिकल की जरूरत पड़ती है, पॉलीएल्यूमिनियम क्लोराइड, एक जो नमक की तरह होता है, जो कि हमको 2 दिन में 3 दिन में इसमें एक बार चार्ज करना पड़ता है। और इस सिस्टम को, जो अंदर रेजिन मैंने आपको बताई थी, वो 2 साल तक आराम से चलती है। तो और बहुत ही सस्ते तरीके से आपको फ्लोराइड फ्री वाटर मिल सकता है। यदि हमारी रिक्वायरमेंट इससे बड़ी है तो हम बड़े सिस्टम लगा सकते हैं, और जो कि 1000 लोगों को पानी दे सकती है। और हम दूसरे तरीके से भी हम जा सकते हैं कि हम चाहें तो सिस्टम को हम, यदि हमको बोरवेल में कनेक्ट करना है तो हम सोलर पैनल के थ्रू पानी को लगा सकते हैं और लोगों को फ्लोराइड फ्री पानी दे सकते हैं। ये जो आप टैंक्स देख रहे हैं, जो आप सोलर पैनल देख रहे हैं, ये सारी टेक्नोलॉजीज, ये सारे सिस्टम्स हम हर एक टाइप की इम्प्योरिटी में लगा सकते हैं। जो बेसिक एक टेक्नोलॉजी है वही चेंज करने की बात है। यदि हम उसको चेंज करेंगे तो जो आउटसाइड इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये हर एक, वेदर फ्लोराइड है, मैग्नीज है, आयरन है, हम उसमें लगा पाएंगे। आप एक और तरीके से लगा सकते हैं, आप एक फ्लोराइड रिमूवल सिस्टम एक गांव में लगा सकते हैं, और उसको यदि मेंटेन करना है, चलाना है, तो आप एक सिस्टम लाइक वेंडिंग मशीन, जो एटीएम होता है, आप यहाँ पे फ्लोराइड फ्री वाटर लोगों को दे सकते हैं। हमारा जो एक सजेशन हमेशा लोगों को यही रहता है कि जब भी आप एक सिस्टम लगाएं तो लोगों को उसकी कदर होनी चाहिए, और लोगों को उसको चलाने, उसकी ऑपरेशनल कॉस्ट के लिए पैसा कंट्रीब्यूट करना चाहिए। तो जब भी इस पानी को लगाने की कोशिश करें, प्लांट को लगाने की कोशिश करें, आप ये जरूर सोचें कि इसको हम चलाएंगे कैसे, और चलाने के लिए कितना पैसा लगेगा, उस पैसे के लिए हम कैसे रिकवरी करेंगे। तो मुश्किल से 50 रुपए में, 100 रुपए महीने में हम शायद हर एक फैमिली को यदि हम ये चार्ज करें तो हम उनको एक शुद्ध पानी दे पाएंगे। तो ये टाइप की टेक्नोलॉजीज मैंने सोचा कि डिस्कस कर लूंगा आप लोगों से, जिससे कि आप देख पाए। और यदि आप देखें तो हम 3000 लोगों को दे सकते हैं दिन में, 3000 से 12000 लोगों को डिफरेंट टाइप ऑफ कैपेसिटी से हम ये फ्लोराइड रिमूवल सिस्टम का पानी दे सकते हैं। ये मैंने एग्जांपल ज्यादा इसलिए लिया फ्लोराइड का, बिकॉज ये सारे एग्जांपल आगे भी एप्लीकेबल है, लेकिन आगे हम इतनी डिटेल में नहीं जाने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने सोचा कि इसको तैयारी करें, और मैंने आपको ये सिस्टम दिखाया। अब ये सिस्टम में दिखाने के लिए इसलिए मैंने ये सिस्टम दिखाया है कि यदि हम ऐसा सिस्टम भी बनाते हैं तो इसको भी मॉनिटरिंग करना बेटर है, आसान है, क्योंकि हम टेक्नोलॉजिकल इंटरफेस भी लगा सकते हैं। आजकल डाटा एनालिटिक्स और टेक्नोलॉजी का इतना जोर हो गया है कि हम इसको कहीं भी बैठे ऑपरेट कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं। और आजकल टेक्नोलॉजी इतनी एक्सपेंसिव नहीं है कि हमको एनालिसिस के लिए प्लांट की परफॉर्मेंस के लिए हमें वहां पे जाके देखना पड़े। हम थ्रू डाटा एनालिटिक्स हम डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं और लोगों को बता सकते हैं। तो ये जो मैंने आपको स्लाइड दिखाई, ये इसलिए दिखाई कि बहुत सारे कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं। आप एक सबसे छोटा सिस्टम अपने हैंडपंप में लगा लीजिए, थोड़ा सा बड़ा चाहिए तो बड़ा लगा लीजिए, उसको ऑटोमेट करना है तो एटीएम बना लीजिए, उसको कंट्रोल करना है तो उसको टेक्नोलॉजी इंटरफेस कर लीजिए। ये सारी ऑप्शंस हमारे पास में है आज की टाइम में, जो कि कम्युनिटी वाटर सिस्टम्स के लिए काम कर सकती है। और अभी हम दूसरी इम्प्योरिटी के ऊपर जाते हैं, हैवी मेटल। जब हम हैवी मेटल के ऊपर जाते हैं तो हैवी मेटल में क्रोमियम, आर्सेनिक, कैडमियम, लेड, मरकरी, मैंगनीज वगैरह आता है। और यदि हम इनको देखें, ये जो इनकी जो प्रेजेंस पानी में है, यदि इवन छोटी क्वांटिटी में भी होते हैं, तो ये हमारे नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करते हैं, हमारी स्किन को इफेक्ट करते हैं, किडनीज को इफेक्ट करते हैं, बोन्स को इफेक्ट करते हैं, और दांतों को इफेक्ट करते हैं। और यदि हम थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं तो क्रोमियम जो है वो रिस्पॉन्सिबल फॉर ए लंग कैंसर, लेड जो है आपके किडनी के लिए इफेक्ट करता है, कैडमियम जो है आपके ह्यूमन के लिए टॉक्सिसिटी क्रिएट करता है, आर्सेनिक जो है आपको कैंसर कॉज कर सकता है, आयरन, कॉपर, जिंक जो है
उनका भी ह्यूमन बॉडी में बायोकेमिकल रोल है, मीन्स दे आल्सो इफेक्ट द बॉडी। तो यदि हम देखें पानी में कंटेमिनेशन है, लेकिन देखें क्या उसका सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन अगेन हम यही बोलेंगे कि एक डिफरेंट टाइप की हम इसमें आयन एक्सचेंज रेजिन यूज कर पाएंगे, जो कि ये आपको हैवी मेटल रिमूवल से राहत दे देगी, एंड वी विल नॉट हैव दिस प्रॉब्लम। तो इसको करने के लिए अगेन वी हैव सिमिलर टाइप ऑफ पिक्चर्स, आई विल नॉट गेट इन पिक्चर्स बट आई विल से कि ये हमको डिफरेंट कैपेसिटीज में अवेलेबल है, और हम इनको WHO स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हैवी मेटल से छुटकारा पा सकते हैं। और इसको प्लांट को कंटिन्यूस चलाने के लिए हमें कास्टिक सोडा की जरूरत पड़ती है और नमक की जरूरत पड़ती है, जो कि हमें 3 दिन में, 4 दिन में या 1 हफ्ते में, डिपेंडिंग अपॉन पानी में क्या कंटेमिनेशन है, वो इसमें डालना पड़ता है और इसको दोबारा से रिचार्ज करना पड़ता है। तो आप यदि देखें तो ये छोटे केमिकल जो जगह जगह अवेलेबल है, यदि हम ये इसको यूज करें, इस टाइप के सिस्टम लगाएं या कोई भी टाइप का सिस्टम जो हमने फ्लोराइड में दिखाया, बड़ा लगाएं, छोटा लगाएं, सोलर पैनल की लगाएं, ATM लगाएं या टेक्नोलॉजी लगाएं, हम इन सब सिस्टम से राहत पा सकते हैं। और हम ये भी कर सकते हैं कि पानी में बहुत ज्यादा हैवी मेटल है तो हम 2 सिस्टम लगा सकते हैं। एक चलेगा, एक जब रिचार्ज करना पड़ेगा तो दूसरा चल पड़ेगा, और फिल्टर से पानी को साफ करके हम ऐसे चला सकते हैं। इसको हम सोलर से चला सकते हैं या पंप से चला सकते हैं। अभी एक और इम्प्योरिटी हम पानी में आती है जो कि नाइट्रेट है। नाइट्रेट एक ऐसी इम्प्योरिटी है जो कि आपको पता नहीं चलती, ना नाइट्रेट में स्मेल होती है, ना टेस्ट होता है, और उसको देख भी नहीं सकते। पानी देखने में एकदम ट्रांसपेरेंट होगा जैसे मिनरल वाटर, बट यदि उसमें नाइट्रेट है तो आपको पता भी नहीं चलेगा जब तक आप उसको केमिकली एनालाइज नहीं करेंगे। लेकिन नाइट्रेट क्या करता है? नाइट्रेट जो है वो आपके स्ट्रेट अवे बॉडी के ब्लड के हीमोग्लोबिन को अटैक करता है। हीमोग्लोबिन क्या होता है कि हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन सप्लाई करता है बॉडी में, और यदि नाइट्रेट उस ऑक्सीजन को ले लेता है तो ऑक्सीजन डिप्लीट हो जाती है, और हमको ये ब्लू बेबी सिंड्रोम आते हैं, मतलब ऑक्सीजन की कमी। जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो आपको इस तरीके के सिस्टम सिस्टम सिम्टम्स नजर आते हैं बॉडी में, जो कि नाइट्रेट की वजह से होते हैं। लकीली नाइट्रेट की जो लिमिट है वो काफी ज्यादा है पानी में, लेकिन यदि 45 ppm से ज्यादा होता है तो ये इफेक्ट करता है, और इस तरीके की आपको प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन यदि आपको ऐसी नाइट्रेट सेलेक्टिव भी, हम इसको प्रॉब्लम को हम सिमिलर टाइप ऑफ टेक्नोलॉजीज के साथ सॉल्व कर सकते हैं और आपको राहत दे सकते हैं। ये जो है नाइट्रेट यदि पानी में है, आप इसको उसी टाइप के सिस्टम में लगाइए, और इसको हम नमक के जरिए पानी को रिचार्ज करें, रेजन को रिचार्ज करें, और आपको नाइट्रेट फ्री पानी दे दें। इसमें भी बिजली की जरूरत नहीं है, और डिफरेंट टाइप ऑफ कैपेसिटीज में आपको ये प्लांट मिल जाते हैं। इसको आप हैंड पंप पे लगा सकते हैं, इसको आप बोरवेल में लगा सकते हैं, इसको आप टैंक में लगा सकते हैं, और 1,000 से लेके 9,000 लोगों तक के लिए या और भी बड़ा चाहिए तो आपको मिल जाता है। अब हम तीसरी नेक्स्ट इम्प्योरिटी देखते हैं, आयरन की। आयरन जो है वो एक, यदि पानी में प्रेजेंट है तो उसका एक पानी का टेस्ट अनप्लेजेंट होता है। जब आप अपने बर्तनों को धोते हैं तो उनके ऊपर स्पॉट्स आ जाते हैं, और यदि आप देखें तो जो पानी में क्लोरीन होती है जो कि डिसइंफेक्शन प्रोवाइड करती है, आयरन उसको खाता है। आयरन eats that chlorine and allows bacteria to grow in water. So all bacteriological disease can be caused because of the presence of iron. So we have to see that water should not have more than required iron. And again, this is a very simple way of using iron, and we use similar type of specific media to remove iron. And in order to do that, we do not require any electricity. इसको सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आयरन को निकालने के लिए कुछ केमिकल भी नहीं लगता है। आपने सिस्टम ऐसा लगा दिया ट्यूबवेल के साथ में, आयरन फ्री पानी आपको मिल गया। आपने यहाँ पे एक वॉल होते हैं इस टैंक के अंदर में, इसको वॉल को रिवर्स किया, और वो आयरन जो रेजिन के ऊपर एब्जॉर्ब था वो बाहर निकला, और ये रेजिन फिर चार्ज हो गया। तो प्रैक्टिकली इसकी ऑपरेशनल कॉस्ट एकदम जीरो है, अदर देन द इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट ऑफ रिमूविंग आयरन। अगेन इसमें वेरियस टाइप ऑफ सिस्टम्स होते हैं, वेरियस टाइप ऑफ कैपेसिटीज होती हैं, और यदि हम इसको देखें तो
हम इसको इवन घरों में भी लगा सकते हैं। सपोज हमने कम्युनिटी में नहीं लगाना, आप इंडिविजुअल घर में भी आयरन रिमूवल सिस्टम लगा सकते हैं, और इसको आप बड़े शहरों के लिए भी लगा सकते हैं या बड़ी म्यूनिसपैलिटीज के लिए भी लगा सकते हैं। और यदि आप देखें तो आप पॉइंट ऑफ व्यूज, बड़े प्लांट्स, इंडस्ट्रियल प्लांट्स, कम्युनिटी बेस्ड प्लांट्स, कहीं पे भी आप इस आयरन टाइप के सिस्टम को यूज कर पाते हैं। और हाउसिंग सोसाइटी में लग जाता है ये सिस्टम, ये आपकी डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट्स में लगता है, एनीवेयर यू कैन डू इट। नाउ दिस अनदर इम्प्योरिटी इन वाटर विच इज कॉल्ड मैग्नीज। मैग्नीज यदि पानी में प्रेजेंट है तो उससे हमको मेमोरी लॉस होता है, वी कैनॉट पे अटेंशन टू थिंग्स, हमारी जो मोटर स्किल्स है, हमारी जो रिस्पॉन्सेज है, रिफ्लेक्सेस है, वो स्लो हो जाती हैं, और जो बच्चे हैं उनको लर्निंग में और बिहेवियर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और मैग्नीज को भी रिमूव करने के लिए हम कोई डिफरेंट टाइप ऑफ कैटलिस्ट यूज करते हैं जो कि मैग्नीज को प्रेसिपिटेट कर देता है, और इसको भी हमें रिचार्ज करने के लिए सिर्फ एक मीडिया चाहिए होता है विच कैन बी हैंडल्ड वेरी इजीली। आर्सेनिक इज अनदर प्रॉब्लम, एंड आर्सेनिक से रिलेटेड जो आपकी इश्यूज हैं, हाइपर पिगमेंटेशन, आपकी बॉडी में इस तरीके के दाने हो जाते हैं, आपको कैंसर हो जाता है। और आर्सेनिक जो है जहां भी प्रेजेंट है वहां पे आयरन जरूर होता है। तो आप यदि देखें तो ये आर्सेनिक से रिलेटेड इश्यूज हैं जो कि हम आजकल बोलते हैं। हमने कभी एक जमाने में पंजाब में बोला करते थे कैंसर ट्रेन्स चलती हैं फॉर हैंडलिंग आर्सेनिक रिलेटेड इश्यूज। बट इफ यू हैव arsenic, we should not be too much worried. We have a solution to remove arsenic also. And arsenic के लिए भी similar type of technology हम use करते हैं। और यदि आप देखें तो ये इतना simple system है जो कि gravity पे काम करता है, और इसको कोई भी chemical नहीं चाहिए, एक आपने मीडिया चार्ज किया और आपको arsenic से सेफ्टी मिल गई। तो हैंड पंप पे आप इसको लगा सकते हैं, arsenic removal system को आप इसको बोरवेल में लगा सकते हैं, आप इसको छोटा बना सकते हैं, बड़ा बना सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट। सो दिस इज ए सिंपल इंजीनियरिंग एक्सरसाइज। आप कम्युनिटी बेस्ड प्लांट लगा सकते हैं जो कि आर्सेनिक के लिए होते हैं। ये 5,000 लोगों के लिए ये जो प्लांट लगा हुआ है, ये 4,000 लोगों को आर्सेनिक फ्री पानी दे देता है एक दिन में। और इसमें जो ऑपरेशनल कॉस्ट कुछ नहीं होती, सिर्फ जो अंदर मीडिया है वो साल में एक बार ही चेंज करना है, और डिफरेंट टाइप ऑफ कैपेसिटीज हैं। तो यदि आप ये देखें, अभी तक हमने क्या किया, हमने डिफरेंट टाइप ऑफ वाटर के बारे में बात करी, डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेमिनेशन के बारे में बात करी। हमने ये समझा कि पोर्टेबल वाटर क्या होता है, सेफ वाटर क्या होता है, पानी के क्या क्या सोर्सेज हैं, और पानी के क्या क्या कंटेमिनेशन होती हैं, हमारे किस टाइप की हमारे पास कम्युनिटी बेस्ड सॉल्यूशंस हैं, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, और हर एक इम्प्योरिटी का क्या इफेक्ट है, एंड हाउ दिस सिस्टम्स कैन बी सक्सेसफुली मैनेज्ड। One important point here is if we want to ensure that community water system works properly, you should always ensure that operating cost is recovered from the people who are using it by using our proper system, and make the women responsible for operation and maintenance of the plant. If we can do that, we have technologies, we can get technologies which will be useful, which will be effective, and you don't have to go for expensive systems like RO technologies, or wait for PhDs, or wait for government to come back and give you uh, suitable pipelines and systems for drinking water. So we can manage and we can overcome these issues in a shortest possible time. So with this, I would like to conclude today's presentation. It was very short, sweet presentation, but I can only say that we have solutions. We can give solutions to meet the requirement of contamination. Today, we have talked about the contamination which is in the dissolved form, which is not visible. Like ये जो पानी का गिलास है ये साफ है, लेकिन इसमें सारी contamination हो सकती है। अगली बारी हम different type की contamination के ऊपर बात करेंगे, जिससे कि हम इस सीरीज को कंप्लीट करेंगे, जो भी contamination पानी की है उसको किस तरीके से एड्रेस करें। तो इतना ज्यादा घबराने की बात नहीं है, वी हैव सॉल्यूशंस। So we have talked one particular approach of handling the contamination issues. With this, I would like to stop it at this point and request Gulshan ji to take it forward. Over to you, Gulshan ji.
Thank you very much. Thank you very much, Manocha Saab. It's such a innovative inputs, and you have given so many basic surface things and all that. और फिर आपने ये भी कहा कि बहुत सारी जगहों में, पंजाब में ही नहीं, आपने नॉर्थ ईस्ट की भी बातचीत की और बाकी जगहों पे। तो आई एम प्रीटी श्योर दैट वी हैव टू टेक इट। आप तो सिंगापुर में प्योर वाटर ले रहे हैं अभी, तो वो ठीक है, बट ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन एंड कम्युनिटी बेस्ड सोल्यूशन। एक इन्होंने जो बहुत बड़ी बात कही है कि जब कुछ फ्री में देते हो तो उसकी वैल्यू नहीं लेता बंदा, चाहे वो थोड़ा सा ही कंट्रीब्यूट करे, पर उनको कंट्रीब्यूट करना चाहिए। That's what is the takeaway. I would like to take it right over here. Next Friday, again we would be meeting and we will move in the series further because ये water management की series हमारी चलती रहेगी, इसको हम लेकर चलेंगे और फिर स्वतंत्रता दिवस के नजदीक कहीं बातचीत करेंगे, 15 अगस्त के नजदीक कि हम कहाँ हैं, कैसे है, भारत की स्थिति क्या है, पानी की स्थिति क्या है, राज्यों की स्थिति क्या है, देश की स्थिति क्या है, और जल संरक्षण में एक्चुअल में क्या कार्य हो रहा है। और उन सब चीजों को लेकर एक पूरे का पूरा हम इसकी एक रिस्पॉन्सिबल रोल अपने चेंबर